Hello, welcome students. I am Veena Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Pune. Students, we have started the subject secretarial practice. In this subject, second topic is sources of corporate finance. We have already seen 3 and 4 videos regarding this topic, that is own capital, shares. Shares are of two types, equity shares and preference shares. We have seen the detailed concepts of this in our previous videos. Students, company can collect the capital by two ways, that is own capital and borrowed capital. So we have seen the concept of own capital. Now the second concept is borrowed capital. Then what is borrowed capital? Borrowed capital means a capital which is collected by loan or collected as loan. Means the company takes a loan from any person or by bank or by financial institutions. The company having various ways for collection of borrowed capital, that is issue of debentures, accepting deposits, bonds and loans from banks or financial institutions. So students, when company collects the borrowed capital, at that time the borrowing power is provided to the board of directors. Means board of directors can collect the borrowed capital. Students, there are two types of companies, private company and public company. A public limited company can collect the borrowed capital when it gets the certificate of commencement of business, and private company can collect the borrowed capital when it gets the certificate of incorporation. Students, when company collects the borrowed capital, company has to pay fixed rate of interest on borrowed capital, and borrowed capital is a loan, so company has to repay the amount after a specified period. कंपनी जब बोरोड कैपिटल कलेक्ट करती है वो कंपनी का लोन है, और लोन जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है. वो पीरियड ख़त्म होते ही कंपनी को उसकी अमाउंट रिफ़ंड करनी पड़ती है, और यह जो लोन कंपनी कलेक्ट करती है उसके ऊपर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है. So students, there is a first way for collection of borrowed capital is debentures. So students, we have to start the concept of debenture. The meaning of debenture is, the word debenture is derived from Latin word debere, which means to owe. डिबेंचर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से प्रिपेयर हुआ है, तैयार हुआ है, उसे कहते हैं डिबेट. एग्जाम में ये फिलअप्स के लिए पूछा जाता है. आफ्टर दैट देयर आर टू डेफिनेशंस रिगार्डिंग द डिबेंचर. The first one is Palmer's define a debenture as an instrument under seal evidencing debt, the essence of it being admission of indebtedness. मतलब डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी ने साइन करके दिया है, जो कंपनी एडमिट करती है कि कंपनी ने किसी से लोन लिया है. सेकंड डेफिनेशन इज टोफाम डिफाइंस a debenture is a document given by a company as evidence of debt to the holder, usually arising out of loan and the most commonly secured by charge. मतलब डिबेंचर जो है वो कंपनी ने दिया हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने लोन लिया है, और ये लोन जब कंपनी लेती है, जब लोन लिया जाता है तो उसे कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है. उसी तरह से डिबेंचर के लिए भी कंपनी ने प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर दी होती है. मतलब डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन ऑफ कंपनी. जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को अगर उनके पैसे कंपनी नहीं दे सकती तो जो प्रॉपर्टी कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पर दी है वो प्रॉपर्टी बेचकर वो कंपनी में दिए हुए पैसे उन्हें वापस मिल जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी द फीचर्स ऑफ डिबेंचर.
So the next is features of debentures. So the first feature is promise. Debenture is a promise by a company that it owes specified sum of money to holder of the debenture. मतलब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक कंपनी ने दिया हुआ प्रॉमिस है. एक कंपनी जो पर्सन का डिबेंचर है उसे जितनी अमाउंट उसमें लिखी है उतनी अमाउंट कंपनी उसे पेड करने का प्रॉमिस देती है, वचन देती है. Second feature is face value. The face value of debenture is normally high. It is rupees 100 or in multiples of rupees 100. डिबेंचर की फेस वैल्यू हाई है, वो 100 या 100 से ज़्यादा ही होती है. थर्ड फीचर इज टाइम ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर्स आर इशूड विथ द डेट stated in the debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on maturity date. जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है उसी समय डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जिस तारीख को डिबेंचर होल्डर को उसकी अमाउंट रिफंड करनी है वो डेट दी जाती है, उसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं. उस टाइम कंपनी ने जितनी अमाउंट ली है उतनी अमाउंट डिबेंचर होल्डर को कंपनी पेड करती है. दैट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट. नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर क्लेम ऑफ कंपनी. मतलब सबसे पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर का क्लेम, उनकी जो अमाउंट है वो पहले पेड करेगी. किसी को भी पैसे देने से पहले, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, उनके पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर की अमाउंट पेड करने वाली है. नेक्स्ट फीचर इज एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेट. दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस करने वाली है. ये जो ड्यू डेट दी हुई है उसी ड्यू डेट को वो कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनके अमाउंट पेड करती है. जो पीरियड के लिए कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म, वो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनके अमाउंट रीपेमेंट करने का एश्योरेंस देती है. Next feature is interest. A fixed rate of interest is paid periodically on debentures. Payment of interest is a fixed liability of the company. It must be paid whether company makes profit or not. मतलब कंपनी जो डिबेंचर होल्डर्स है उन्हें फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करती है. वो कंपनी की लायबिलिटी है. लायबिलिटी होने के कारण कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को उनका इंटरेस्ट पेड करना ही है. नेक्स्ट फीचर इज पार्टीज टू डिबेंचर्स. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पार्टीज रिलेटेड टू द डिबेंचर. फर्स्ट वन इज कंपनी. कंपनी मीन्स जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, दैट इज द कंपनी. सेकंड इज ट्रस्टीज. This is a party through whom the company deals with debenture holders. They are appointed when debentures offer more than 500 people. The agreement makes with the trustees is known as trust deed. मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स है और कंपनी है, इनके बीच में जो काम करता है वो है ट्रस्टीज. कंपनी ये ट्रस्टी कब अपॉइंट करती है? जब कंपनी 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू करती है तो उस टाइम कंपनी को ये ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं. और ये ट्रस्टीज जब कंपनी अपॉइंट करती है तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है, उसे ट्रस्ट डीड बोला जाता है. ये एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि कंपनी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने वाली है वो डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके इस एग्रीमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है. अगर कंपनी वो पैसे नहीं दे सकती तो ट्रस्टीज कंपनी की ये प्रॉपर्टी सेल करके डिबेंचर होल्डर्स को उनके अमाउंट पेड करती है.
So the third party is debenture holders. These are the parties who provide loan and debenture certificate as an evidence. जो पर्सन डिबेंचर परचेज करेगा, ही इज द डिबेंचर होल्डर, मीन्स ही इज द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द डिबेंचर. So there are three parties related to the debentures: company, trustees and debenture holders. Next is authority to issue debenture. As per Companies Act 2013 section 179 of 3, the board of directors has a power to issue debentures. मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है जो डिबेंचर्स वो इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ये फिलअप के लिए भी पूछा जा सकता है. डिबेंचर होल्डर्स क्या है? वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं. नेक्स्ट, वोटिंग राइट. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 ऑफ 2, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. Debentures are generally secured by fixed or floating charge on assets of the company. कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है उसे कंपनी ने प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर दी गई है रहती है. मतलब कंपनी अगर उनके पैसे नहीं दे सकती तो वो कंपनी की मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी बेचकर उनके पैसे वापस ले सकते हैं. नेक्स्ट वन, इशूअर्स. Debentures can be issued by both private and public company. कोई भी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं. नेक्स्ट इज लिस्टिंग. डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. स्टूडेंट्स, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, शेयर्स के कौन से भी टाइप इशू किए जाए, कंपनी को कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो इशू किए गए जो डिबेंचर्स है, शेयर्स है, उनको रिकॉर्ड रजिस्टर करना पड़ता है. उसी तरह डिबेंचर के लिए भी एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उन्हें लिस्ट करना है. नेक्स्ट वन, ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. अगर किसी पर्सन को डिबेंचर नहीं चाहिए तो वो अपने डिबेंचर्स अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है. जैसे शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं वैसे ही डिबेंचर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. थैंक यू. आई होप you like the video. Subscribe my channel. Thank you.